Aam Aadmi Party leader and Delhi Minister Atishi has said the ED has sent Chief Minister Arvind Kejriwal a fresh summon to join its probe in a fake case linked to the Delhi Jal Board. Atishi said 2 summons asking Kejriwal to appear before the federal agency next week were received after the Lok Sabha poll date announcement on Saturday. One of them is related to the excise policy case and the other to the Delhi Jal Board case. Shubh Rana joins us for more on this story. Shubh, it seems that the Aam Aadmi Party once again is attacking the centre and the ED over these fresh summons. Yes, of course, Uday. And in today's press conference addressed by Atishi, she have clearly said that Prime Minister Narendra Modi have 2 wounds, which is one is CBI and the other is ED. And Atishi have claimed that Aam Aadmi Party is being attacked by BJP's propaganda. And she has said that this is BJP's backup plan. And she have also said that this Jal Board case is fake. It have no reality. Although Arvind Kejriwal have been issued a summon to present tomorrow at ED. And in this Jal Board case, Arvind Kejriwal will have to give these statements to the ED. And a day before, you can see Rouse Avenue Court have granted bail to the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. And just 3 hours after the announcement of dates from the Election Commission, there is a major development and ED have issued a 9th summons. And the Sunday seems to be very terrible for Aam Aadmi Party because summons have been issuing by the ED for this money laundering case, for this liquor scam, and now the recent development have been made in this Jal Board case. And due to this recent development in Jal Board case, Aam Aadmi Party have been constantly denying that this allegation for this scam in Jal Board case is have no truth in it, is totally a lie, and BJP is doing it just because they are scared of Aam Aadmi Party's seat in Lok Sabha, and just because Lok Sabha elections are very near. So this is BJP's strategy. This is what today Atishi have said in a press conference. Although at 1 p.m. Dilip Pandey will also address the press conference today right here, and he'll also say that what is the recent development on this Jal Board case, because tomorrow will be a big day for Aam Aadmi Party, because tomorrow Arvind Kejriwal will be asked again by ED on this Jal Board scam. Yes, back to you there. All right, Shubh, thank you for joining us with those details. The ED, of course, has issued those 9 summons to Delhi CM Arvind Kejriwal, asking to appear before it on Thursday, March 21st. And clearly, of course, political reactions on this story, though, continue to come in. देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने ये 9वां समन भेजा है। लेकिन अफसोस, दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते हैं और कानून से भाग रहे हैं। 9वां सम्मन है। उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस बार ईडी का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। It's very unfortunate that this kind of vindictive politics has taken over India, and it's very unfortunate because that's not what a free democracy is, and that's not why our forefathers fought the British. But unfortunately, if you see India today, the way agencies are used against people is very, very disappointing. My colleague has also spoken with BJP State President Virendra Sachdeva on this story. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन ईडी की तरफ से भेजा गया है और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के गुंडे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ईडी और सीबीआई जो है मोदी जी के गुंडे हैं और ये एक्सटॉर्शन करते हैं, और जैसे कि गुंडे हफ्ता मांगते हैं वैसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड से मतलब कंपनी से पैसा मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आतिशी की जो भाषा है, मुझे हैरानी है कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई है और इस तरह की भाषा तो सड़क के गुंडे बोलते हैं। तो मुझे उनकी भाषा पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे आतिशी सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं कि जिस शराब नीति के घोटाले में सम्मन जारी किए जा रहे हैं, अगर दिल्ली में शराब नीति ठीक थी इनकी, तो बदलने की जरूरत क्या थी? मुझे इस एक बात का जवाब अरविंद केजरीवाल और आतिशी दे दें कि अगर शराब नीति पहले तो लाए क्यों, और अगर लाए थे तो फिर बदली क्यों? तो इसका मतलब उसमें कहीं खेल हुआ है
और जब जांच एजेंसी उस खेल को उजागर कर रही है, दिल्ली की जनता के सामने उजागर हो चुका है, अब सिर्फ कानून के सामने होना है। तो और अगर इतना बड़ा घोटाला नहीं था तो आतिशी ये बता दें कि इनके उप मुख्यमंत्री जो आज 1 साल से ऊपर समय से ज्यादा जेल में बंद हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? देश में तो कानून का शासन है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। तो बेहतर होगा कि इस तरह की अभद्र भाषा बोलने की बजाय आप जांच एजेंसी के साथ सहयोग करें और जांच एजेंसी को सच सामने लाने दें। लेकिन मुख्यमंत्री को बेल मिल चुकी है और वो कह रही है कि बीजेपी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है, क्यों बार बार समन भेजा जा रहा है जब बेल मिल चुकी है? तो इससे तो कोई अपराध सामने नहीं आ रहा है उनके ऊपर। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ पर भी वो झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री को बेल शराब नीति घोटाले में नहीं मिली है, उसमें तो अभी जांच ही शुरू नहीं हुई है। वो जो बेल अरविंद केजरीवाल ने स्वयं जाके कोर्ट में ली है, जिस सम्मन को वो गैर कानूनी बताते थे, जिस सम्मन को वो अवैध बताते थे, उस सम्मन को उन्होंने अब कानूनी रूप से स्वीकार किया है। उस मामले में धारा 174 के मामले में उनको बेल मिली है। उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। शराब नीति की तो अभी ईडी ने बात ही नहीं की है, तो जांच एजेंसी को काम करने दीजिए। ये कहना कि शराब नीति घोटाले में बेल मिली है, ये आतिशी और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा झूठ है। आतिशी तो ये भी कह रही है कि जो जल बोर्ड घोटाले की आप लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। क्या बीजेपी को पता है ये जल बोर्ड घोटाले? आप किस घोटाले की बात कर रहे हैं इस पर? पिछले कई वर्षों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार इनके घोटालों को उजागर करते रहे और एक नहीं दर्जनों घोटाले हैं। आतिशी बताएं कि उनके 4 अधिकारी जेल में बंद किए हैं जल बोर्ड के, करोड़ों रुपए उनके यहाँ से बरामद कैसे हुए हैं। आतिशी ये बताएं कि जो उपभोक्ताओं से पेमेंट ली जाती थी और जिस बैंक के माध्यम में आती थी और उसके बाद से जल बोर्ड को जानी थी, वो क्यों नहीं गई। आतिशी ये बताएं कि ऐसे कितने टेंडर हैं जो सिर्फ कागज पे पूरे किए गए, लेकिन सड़क पे जमीन पे उनका काम नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई। जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। ये बात आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जानता है, क्योंकि इन सब ने उसमें कमीशन खाई है। अब जांच एजेंसी अगर उसमें कुछ काम कर रही है तो वो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो इसको उजागर करने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा? क्या जनता तक सच पहुंचाने के लिए आप कोई स्टेप लेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के घोटालों को, कम से कम दर्जनों घोटालों को हम उजागर कर चुके हैं और इसलिए माननीय उपराज्यपाल ने इसकी जांच की सिफारिश की थी। तो मुझे लगता है कि जब 4-4, 5-5 अधिकारी गिरफ्तार हुए और वो बयान दे रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये पैसा ऊपर तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गया है, तो जब जांच एजेंसी काम कर रही है तो उस तथ्य आने दीजिए सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस ईडी और सीबीआई को वो गुंडे बता रहे हैं बीजेपी का, उनको अपनी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनको जांच एजेंसियों के लिए नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.